Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। Thank you once again for joining with us on the live service of House of Faith. और फिर से एक बार हाउस ऑफ फेथ की लाइव सर्विस में आप शामिल हुए, इसलिए आप सभी का स्वागत है। And I strongly believe that every time whenever you're connecting with us, you are being blessed with the presence of God. और हर बार जब आप हमसे जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण आप आशीषित हो रहे हैं। And even today, the Lord is going to bless you. और आज भी परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। Don't be worried. और आप चिंता ना करें। Don't be fearful. आप घबराए नहीं। Whatever things, whatever challenges you are going through in your life. और आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आप इस वक्त जिस भी चुनौती से गुजर रहे हैं, जिस भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, It may be sickness. हो सकता है कि एक बीमारी हो, It may be finances. हो सकता है कि आर्थिक समस्याएं It may be हैं, some court case. हो सकता है कि कोई कोर्ट का केस It हो, may be some relationship problems. हो सकता है कि रिश्तों में समस्याएं हैं। But tonight I pray for you, my friends. पर आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे दोस्तों। I ask the living God to come in your life. और जीवित परमेश्वर को मैं आपकी जिंदगी में बुलाता हूँ, आपकी जिंदगियों में यीशु मसीह का स्वागत करता That हूँ, He will be a great help to you. क्योंकि प्रभु आपके लिए सबसे बड़ी ऐसी सहायता है। Things that seems to be impossible for you, He will make it possible. वो चीजें जो आपके लिए असंभव है, प्रभु उसे संभव करेंगे, Because He is the living God. क्योंकि वो जीवित ऐसे परमेश्वर He is है। the one who died for you. वो आपके लिए मरे। He didn't die only for the Christians, but the Bible says He died for the entire world. वो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं मरे, पर वो सारी जगत के लिए मरे हैं। And He rose back on the third day. और तीसरे दिन वे फिर से जी उठे। So He is the resurrected Savior. और वे जो है वो जीवित हुए, जिंदा हुए, ऐसे यीशु मसीह हमारे परमेश्वर He हैं। is the living God वो जीवित ऐसे परमेश्वर who हैं, is seated on His throne with all His glory. और वो अपने सिंहासन पर अपनी सारी महिमा समेत बैठे हुए हैं, And विराजमान He's हैं, ready to hear all your prayers. और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार And हैं। what you need to do, और इस वक्त आपको जो करना है, you just need to give your heart to अपने Jesus. हृदय को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है, Just believe in this prayer. और आप इस प्रार्थना में विश्वास करें, Agree in this prayer. आप इस प्रार्थना में सहमत हो। And I'm telling you, in the mighty name of Jesus, you will see the glory of God in your life. और यीशु के सामर्थी नाम से मैं कहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। My friends, it's time to pray. आइए अब समय है कि हम प्रार्थना करें। Let's bow down our heads in prayer. आइए अपने सरों को हम झुकाएं। Most gracious Heavenly Father, King of Kings and the Lord of Lords, Almighty, all-powerful, all-awesome, glorious King who is seated on the throne, we worship you, we praise you, we adore you, we magnify your name, we lift your name, we exalt your name. Jesus, you are the King of glory. You are the King of honor. You are the King of majesty. Your name is greater than any other name. There is no other name that can compare with you, Lord. You are supreme. You are immortal. You are the only wise God who reigns forever and ever. And to your kingdom there is no end. Your kingdom never ceases because you are the glory. You have come in glory. You are rising in your glory. You are in all your awesome, all your splendor, seated on the throne. The heavens bow down before you. The angels bow down before you. And they worship you day and night, and they say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Oh Shanamahundalakastehilaba. Father God, I just pray in the name of Jesus for all the viewers Yes. who are connecting with us from different places. प्रभु जो सारे अलग-अलग ठिकानों से सारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, Lord, you know their sorrow. प्रभु आप इनके दुखों को जानते हैं। You know their pain and their heartaches, their आप- failures. आप जानते हैं प्रभु कि वो किस दर्द से और किस परेशानी से गुजर रहे हैं। You know, Lord, their brokenness. आप उनके टूटे हुए हृदय को जानते हैं। You know, Father, how much they are struggling with their sickness. आप जानते हैं प्रभु कि किस तरह वो अपने बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। But tonight, today we pray, oh God, और आज हम दुआ करते हैं, the living Savior Jesus Christ is coming in your life. यीशु मसीह जो
जो जीवित उद्धार करता है, आपके जीवन में उनका प्रवेश हो रहा है। God of glory is coming in your lives right now. महिमा के परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। Every darkness in your life, in the name of Jesus, I pray, let it be removed right now. हर एक अंधकार आपके जीवन से इस वक्त निकल जाए यीशु के नाम से। I speak the power of the light of Jesus to shine in your lives. यीशु मसीह के प्रकाश को आपके जीवन पर हम आजाद करते हैं। Every bondages, every strongholds in your life, generational curses, inherited curses, sins, sickness, darkness, every bloodline that is coming from generation to generation and making you to struggle, making you to be sick, making you to be in bondage. Today, in the mighty name of Jesus, we break every curse in your life. We break every struggle in your life. We break every yoke in your life. And today, in the name of Jesus, my dear friends, you are free. Amen. You are free tonight. Free. Today, you are free. Today, you are going to see freedom in your life. Today, you are going to see peace of God coming in your life. You are going to experience great joy coming in your life. And I speak to every sick body. I speak to every sickness in the mighty name of Jesus. Get out of their bodies right now in the name of Jesus. The word of God says, behold, I have given you power over all the power of the enemy. And in that mighty resurrected name of Jesus, I pray, let their bodies be healed. Let their bodies be delivered. Let their bodies be restored to perfect health in the name of Jesus. I command every organ, I command every part of your body to work normally in the name of Jesus. Every sickness, every terminal diseases, every sickness that as doctors have said that there is no treatment, I speak to that sickness in the mighty name of Jesus. Leave all the viewers who are watching us right now. I bind every curse of finances. I bind every struggles, every failures, every recession, saturation, undercapitalization, financial crisis, financial breakdowns. Out in the name of Jesus. I speak to you now. Jehovah Jireh shall supply all your needs. You shall be filled with whatever you need because God shall provide for you. God shall stand for you. You shall not labor. You shall not struggle. But you shall encounter the great favor of God in your life. And I speak in the name of Jesus that the Lord will preserve you. The Lord will preserve you. As in the book of 2 Samuel 8 chapter, the Bible says whenever David went for war against his enemies, the Syrians and the Philistines and the Edomites, they all became their servants because the Lord preserved David wherever he went. Amen. And in the name of Yeshua, in the name of Jesus, I speak, the Lord will keep you, the Lord will preserve you, and will not allow any harm or danger to come near you. The Lord will be your protection. No evil plague, no evil shall come near your dwellings. Your houses are protected. Your family are protected. Your children are protected. Your business is protected. Your jobs are protected. Your lives are protected. Satan comes to steal, kill and destroy, but Jesus has come to give you life, abundant life, in Jesus' name. Receive that abundance, receive that mercy, receive that abundant grace in the name of Jesus. I pray for every person who's in addiction. The Lord is showing smoking, that you are a chain smoker. अगर आप एक चेन स्मोकर I break that addiction of smoking, intake of tobacco, intake of alcohol, be broken in the name of Jesus. Tonight the Lord set you free. Tonight is a day of deliverance. Today is a day of salvation for you in the name of Jesus. Receive Jesus in your life and you have everything. Receive Jesus in your life and you have security, you have blessing, because the Lord of glory is by your side. Amen. Father, we thank you, Lord, for all the viewers who have done this prayer, who have heard this prayer,
who have believed in this prayer, I pray the power of prayer is now operating in their lives. From this day onward, they are going to see great changes in their lives. Great things are happening in their lives. New things are happening in their lives. And the Lord is doing a new things in all of your viewers' life. Amen. Thank you, Master. Father, we commit this musicians, the set of technicians, and the singers who are going to worship and elevate your name. Lord, let your glory come in more mighty way, Father. Yes, as we worship you, as we praise you, Father, we pray that you will fill us all with a mighty presence. Mighty presence. And we shall never be the same, O God. We shall be new people. We shall be transformed people. Amen. Because God of glory is coming in our midst. Amen. And Lord, we welcome your presence. We welcome We your welcome your presence, Lord Holy Spirit. We welcome Be you. enthroned on the praises of your people. We welcome you. We bless you, Jesus. Be blessed. We thank you for this wonderful time, this wonderful privilege you have given us, O God. I, as the pastor of House of Faith, and my wife, we come in agreement and we decree and declare and release all the prophetical blessings for all the viewers that salvation has come to your homes today. Amen. Power of evil is broken, power of Satan is broken in your lives in Jesus' name. From this day onward, you are free. In the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. The Son of God was manifested to destroy the works of Satan. Satan, yes. And to heal the broken-hearted, to set the captives free. And today, every captivity is broken. Every person who is broken, emotionally wounded, physically wounded, today, your healing is coming from the cross of Jesus. Amen. By the power of the stripes of Jesus, you are going to receive great healing in your bodies. I Yes. could just sense the Spirit of God is working in you. Amen. Amen. Thank you, Master. Lord, we give you all the praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray and ask. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now it's time to worship the King of Kings and the Lord of Lords. अब समय है कि हम राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु की महिमा करें. And I request Brother Richard to please lead us in praise and worship. और भाई रिचर्ड जो है वो हमारी स्तुति और आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे. Thank you so much. Thank you. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी मान महिमा गौरव हम हमारे महान परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देते हैं। आइए हम उसका स्वागत जोरदार तालियों के साथ करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब खुश हैं, हेल एंड हार्टी है, एंजॉयिंग। हालेलुया। कितना धन्यवाद दें उस महान परमेश्वर को। हम ये ऐसे माहौल में भी, ऐसे सिचुएशन में भी वो हमारी फिक्र करता है। जब हम बात करते हैं हमारे भाइयों से, बहनों से, पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, सब कहते हैं परमेश्वर की दया है। सही में उसकी ही दया है, उसके बगैर हम कुछ नहीं है। उसका प्यार महान है, हम गिन नहीं सकते। तो आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना हम करें और हमारे आंखों को हम बंद करें, हाथों को उठाएं, हमारे दिलों को उसकी ओर सरेंडर करें और धन्यवाद देते हुए उस महान परमेश्वर के लिए हम गीत गाएं। आप घरों में हो तो आप नाच सकते हो, तालियां बजा सकते हो, मेहमानों को बुलाकर उस महान परमेश्वर का इंट्रोडक्शन दे सकते हो, क्योंकि उसका प्यार महान है। जब हम मरने वाले थे, नरक की ओर जाने वाले थे, उस महान परमेश्वर ने स्वर्ग का राज छोड़कर हमें बचाया है। जब हम भटक गए थे, उसका प्यार इतना महान, जब हम उसे जानते नहीं थे,
उसका प्यार इतना महान कि उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी। इसलिए भाई और बहनों, हम उसमें कायम रहे। जो डाली उसमें कायम रहती है वो मजबूत होती है। उसकी बुनियाद अगर यीशु मसीह है तो डाली मजबूत होती है। सारी मान, महिमा, गौरव उस महान परमेश्वर को हम देते हैं, क्योंकि वही हमारा कफारा है। आइए हम उसे आज कहे कि हाँ प्रभु, हम तेरी राहों पर चलेंगे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। हम साथ में गाए, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया।
चलता रहो मेरे खुदा। हाँ प्रभु, कितना प्यार करता है मुझसे। मैंने पूछा प्रभु से, क्यों करता मुझसे तो इतना प्यार? तो उसने कहा, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना।
तेरी हम तलाश करते प्रभु, तुझे आवाज लगाते हैं, हमारी आवाज को सुन। तेरी तलाश करता तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू, तेरी तलाश
रचना हाँ प्रभु, हम तेरे हाथों की रचना है। तूने हमें सिरजा है, अपने स्वरूप में तूने हमें बनाया प्रभु, धन्यवाद। आज उससे कहना चाहते प्रभु कि हम तुझसे प्यार करते हैं, कोई इतना प्यार करते हैं प्रभु, क्योंकि पहले तूने हमसे प्यार किया। धन्यवाद। हाँ प्रभु, हमसे बात कर, उस रहस्य में बातों को हमें बता प्रभु, हमारे सामने उस बातों को खोल, ताकि तेरी महानता को हम जान सकें। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम महान यीशु मसीह के लिए हम जोरों से आगे के समय में हमारे पास सबका अपने सबका Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Can everyone who is present here say praise the Lord? Praise the Lord. Can we have some smiling faces here? Because we are worshipping the living God, the King of Kings and the Lord of Lords, the resurrected Savior, Jesus Christ. क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे महान परमेश्वर यीशु मसीह का। And before we proceed further, आगे बढ़ने से पहले I want you to continue smiling. मैं चाहती हूँ कि आपके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है वो बरकरार रहे, Because Jesus loves you smile. क्योंकि यीशु मसीह को ये मुस्कुराहट पसंद है। And it's a genuine, because people say smile, you know, you have those in the mobile, you have the smiley faces and all. But really, the one who loves you smile, the one who takes care of your smile is the Lord Jesus Christ. आपके चेहरे के ऊपर जो मुस्कान है वो वाकई में यीशु मसीह बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल के ऊपर फिल्टर होता है, उसके ऊपर एक ऐसे झूठ मूठ की जो मुस्कान होती है, पर ये मुस्कान नहीं, यीशु मसीह को आपके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है वो वाकई में बहुत ज्यादा पसंद है। Do you know that Jesus has paid for your smile? क्या आप जानते हो कि यीशु मसीह ने ये मुस्कान की कीमत अदा की है? Once when as the song was, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा पानी से नहीं, पर अपने शरीर के लहू से। हर बूंद यीशु ने आपकी खातिर बहाई कि आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशी कभी कम न हो। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर यानी वो परमेश्वर जो बहुत ही दूर है और जो सिर्फ रुके हुए हैं हमें पाप के लिए दंडित करने के लिए, जो छड़ी लेकर बैठे हुए हैं कि फिर पाप किया, आओ तो एक I'll just give you one, but I'm telling you, yes, sin has consequences. पाप का परिणाम होता है। I'm not undermining sin here. यहाँ पर मैं जो पाप है उसे कम नहीं दिखा रही हूँ, But I want to tell you, पर मैं आपको बताना चाहती the हूँ, blood of Jesus is greater than your sin. पर यीशु मसीह का लहू आपके पाप से ज्यादा बढ़कर है, तूने सींचा लहू से ताकि ताकि आए हरियाली। आज आपकी जिंदगी में वो हरियाली जो है, याद रखें, वो यीशु के लहू के कारण है। आज आपकी जिंदगी में जो खुशी है वो यीशु के क्रूस के बलिदान के कारण है। Rejoice, आनंद मनाए। why? क्यों? Not because we have everything good in our lives, everything is going smooth and well.
इसलिए नहीं कि हमारे जीवन के अंदर हर एक चीज बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत सारी चीजें अच्छी तरह से हो रहा है, इसलिए नहीं। Where does the Bible say? In Philippians it says, rejoice in the Lord all, can I hear? Always. And again I say, Rejoice. वहाँ पर ऐसा है कि आनंद मनाओ। जब भी आपका बिजनेस जिस दिन बहुत अच्छा रहे ना, तब आनंद मनाना। ऐसा है? जिस दिन आपको अच्छा खाना मिले ना, उस दिन आनंद मनाना। Bible says, rejoice in the Lord always, always. परमेश्वर में हर दम आप आनंदित रहे। You know, there's a joy that comes from being in the presence of the living God. जीवित परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर रहना, ये एक नया आनंद लेकर आता और है। ये आनंद और ये जो परमेश्वर, बाइबल कहता है नेहमिया 8:10 में कि परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत है और ये आनंद आपसे कोई नहीं चुरा सकता। कोई हालात, कोई बीमारी, कोई कोरोना वायरस, कुछ भी, कोई कमी, कोई घटी, इस आनंद को नहीं चुरा सकते, क्योंकि परमेश्वर का आनंद इन सब से बढ़कर है। क्या यहोवा आपका बल है? यस। क्या यीशु मसीह आपका बल है? यस। तो देखेंगे कि अगर यीशु मसीह हमारे बल है, अगर यीशु मसीह हमारी ताकत है, तो जब हम, बाइबल कहता है भजन संहिता 81 the first verse, 81:1, sing aloud to our God our strength. परमेश्वर जो हमारा बल है, उसके गीत आनंद से गाओ। क्या यीशु आपका बल है? यस। आपका बैंक बैलेंस आपका बल है? नो। आपकी खूबसूरती आपका बल है? नहीं। आपकी बॉडी आपका बल है? नहीं। आपका बल यीशु मसीह है। और यदि सच में आपका बल यीशु मसीह है, तो बाइबल कहता है सिंग अलाउड। यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर का जोर से स्वर में आप जय जयकार करो। धीरे गाओ। यहाँ पे धीरे नहीं लिखा है, जो यहोवा आपका बल है उसके लिए लिखा है सिंग अलाउड। आप ऊंचे स्वर में गीत गाएं। That means, yeah, my voice is also going loud, I know, because it says you need to sing aloud to God because He is your strength. क्योंकि परमेश्वर आपका बल है, इसलिए आपने ऊंचे स्वर में उसके गुणगान करने, उसकी स्तुति करना है। Doesn't mean that, you know, when your neighbors are sleeping you sing aloud, but when you really know that God is your strength, automatically your spirit wants to sing louder. And you know, आप मैच देखते हो, how many you see match, right? Soccer, maybe cricket, football, और फिर जब हम देखते हैं तो हम कितने एक्साइटमेंट में होते हैं। Or you see like this, okay, done. How do you watch? Excited. If you're not excited for Jesus, then I think you're not excited for anything. Are you excited for Jesus? Yes. Then how you should sing aloud. Let there be, I'll tell you one thing, the most exciting thing in your life is Jesus Christ. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में सबसे जो उत्साह लेकर आने वाली जो चीज है, वो है यीशु मसीह। Make a joyful shout to the God of Jacob. याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। Joyful shout. जय जयकार। Shout. चिल्लाएं। Joyful shout. और आप आनंद से चिल्लाएं। किसके लिए? याकूब के The परमेश्वर, God of Jacob. याकूब के परमेश्वर के लिए। There was one man of God. एक परमेश्वर का दास था, He was given a vision of heaven. उसे स्वर्ग का एक दृष्टांत दिया परमेश्वर And ने, he was given a sound of roaring. और उसे एक गरजने का आवाज आया। This sound that you make unto the Lord is not a foolish thing. और ये जो आवाज आप परमेश्वर के लिए करते हो, वो कोई मूर्खता की
की चीज नहीं है। It's not like okay, हम तो अभी बड़े हो गए, you know, we need to have this kind of thing, this kind of a behavior. We need to behave this way. Let me tell you one thing. That's what Bible says. Be like a child. और आप कहोगे कि मैं तो अभी बड़ा हो गया हूँ, मैंने इस प्रकार से आवाज नहीं करने हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक बालक के समान बने। When you come to the feet of Jesus, जब आप यीशु के चरणों के पास आते हो, forget all the barriers. हर एक रुकावट को आप भूल जाए, Just rejoice. सिर्फ आनंदित हो। Make a joyful noise unto the Lord. आनंद का ऊंचा स्वर आप परमेश्वर के लिए The God of Jacob is with you. याकूब का परमेश्वर आपके संग है। Abraham का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह जो आपके हैं, इस रिश्ते में कोई कंडीशन नहीं है, इस रिश्ते में कोई शर्त नहीं है। He loves you. वो आपसे प्यार करता है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करते हैं। Amen. आमेन। The next verse, if you read the first verse, it says, raise a song and strike the timbrel. और यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर कि आप ऊंचे स्वर से नरसिंगा फूको। Is praise and worship so important? क्या स्तुति और आराधना इतनी महत्वपूर्ण है That God has given us instructions. कि परमेश्वर ने हमें निर्देश दिया है। Raise a song. और ऊंचे स्वर में गीत गाओ। Strike the timbrel. और आप झांझ बजाए, नरसिंगा फूके। The pleasant harp with the flute. और आप नरसिंगा फूके और बांसुरी बजाए। Why all these instruments? ये सारे वाद्य क्यों? For the King of glory. महिमा का राजा, For the King of kings. राजाओं का राजा, Who was, who is, and who shall ever be. जो था, जो है और हमेशा रहेगा। His kingdom shall never end. उसके राज का कभी अंत ना होगा। With dancing. नाचते हुए, With singing. गाते हुए, With clapping. तालियां बजाते All the हुए, instruments. सारे वाद्य। Let us praise Jesus. आइए हम यीशु की स्तुति करें। Let us worship our Creator. आइए हमारे निर्माण करता की हम महिमा करें। The book of Psalms 84:5 says, भजन संहिता 84:5 कहता है, Blessed is the man whose strength is in you. धन्य है वो मनुष्य जिसकी शक्ति परमेश्वर है। जिसकी शक्ति परमेश्वर है। धन्य है आप, क्योंकि आपकी शक्ति कौन है? यीशु मसीह है। धन्य है वो जिनकी शक्ति यीशु मसीह है। What is our strength today? आज हमारी ताकत क्या है? I just read a story. और मैंने एक कहानी पढ़ी। There was once a believer, a new believer, और एक नए सिरे से एक जन्मा हुआ एक विश्वासी था, और वो पूरी तरह फाइनेंशियली प्रॉब्लम में था। एंड वंस इट हैपेंड कि वो जैसे उद्धार पाता है, तो पवित्र आत्मा उन्हें आइडिया देता है कि वो नमक का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जैसे वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो बहुत फ्लरिश होते हैं और वो बहुत he gets lot of success. उसे बहुत ही वहां पर यश मिलता है। And then it says कि बहुत समय के बाद ऐसा होता है कि वहां पर बाढ़ आ जाती है और जो उन्होंने जो नमक स्टोर किया था वो सारा बह जाता है। And he is in a complete loss. उसे बहुत ही नुकसान होता है। So Paul Yonkicho, he goes there. पॉल योंकिचो वहां पर जाते हैं और वहाँ के जो पास्टर हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कहते हैं पवित्र आत्मा मैंने क्या बताऊं, वो हाउ डू आई कंसोल दिस पर्सन, मैं इस व्यक्ति को किस प्रकार से सांत्वना दूं। एंड व्हेन ही गोज टू दैट पर्सन, जब ये उस व्यक्ति के पास में जाते हैं जो दुखी दिखना चाहिए था, जो मायूस और उदास दिखना चाहिए था, वो कहता है कि नमक
तो पानी में क्या हो गया? डूब गया। पर मेरा विश्वास अभी तक बरकरार है। मेरा विश्वास मेरे बिजनेस पर नहीं, मेरा विश्वास और मेरी शक्ति मेरा यीशु है। अगर आज आपके जीवन में कोई चीज जो आपने जिसे सक्सेस का टर्म दिया था, अगर आप फील करते हैं कि वो सक्सेस फेलियर में बदल गया है और आप अपने आप को एक फेलियर समझ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि बिजनेस में गो, चीजें बदल सकती हैं, पर आपके अंदर का विश्वास और आपने जो यीशु मसीह को अपनी शक्ति बनाई है वो कभी ना बदले। नमक पानी में घुल गया, पर वो कहता है कि मेरा विश्वास अब भी अटल है, अब भी बरकरार है, क्योंकि यहोवा मेरी शक्ति है। तो किसी भी चीज को अपनी स्ट्रेंथ ना बनाए, सिर्फ किसे बनाना है अपनी स्ट्रेंथ? यीशु। Can you say the sweet name? यीशु। Sweetest of all names? जीसस। मत से भी मीठा यीशु नाम। और जब आप यीशु नाम लेते हैं तो आपकी आत्मा में एक मिठास आती है। जब आप यीशु नाम लेते हैं, you get excited when you take the name of Jesus, because you know how much he loves you. जब भी आप यीशु मसीह का नाम लेते हो, आप उत्साहित हो जाते हो, क्योंकि आप जानते हो कि ये यीशु आपसे कितना प्यार करते हैं। Psalms 84:5 is a very important verse. और भजन संहिता 84:5 बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वचन है। If you're passing through the valley of Baca, और जब भी आप विलाप के ऐसे तराई से गुजर रहे हो, आप जो सुन रहे हो, मे भी आपका कोई फैमिली मेंबर गुजर गया है और आप सोच रहे हो कि इस कड़वाहट के समय में, इस समय जब मैं एक ऐसी खाई से गुजर रहा हूँ जो मे बी माई इमोशंस नोबडी कैन अंडरस्टैंड, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे जो अभी सारे भावनाएं हैं वो कोई समझ नहीं सकता। maybe you're going through a phase of your life where your emotions are in a state of turmoil. और हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर पूरी तरह से कोलाहल है। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहती हूँ, Psalms 84:5. भजन संहिता 84:5, Blessed is the man whose strength is the Lord, धन्य है वो मनुष्य जिसका बल, जिसकी शक्ति परमेश्वर है, whose heart is set on pilgrimage. और जिसका हृदय सियोन के सड़क के ऊपर है। Pilgrimage is, if you say तीर्थस्थान, मुसाफिर, you know, actual meaning is यहाँ पर आप इस चीज को याद रखें कि आप इस धरती पर एक मुसाफिर हो। ये मेरा घर है, ये मेरा है, you know, this is mine, and you get so attached to so many things. 1 Peter 2:11 says, Beloved, प्रियजन, I beg you, मैं तुझसे विनती करता हूँ, as sojourners and pilgrims, और जैसे मुसाफिर abstain from fleshly lust, सारे जो देह की अभिलाषा है उससे दूर रहे, which war against your soul. जो आपके आत्मा के खिलाफ लड़ता है। If there is a time, अगर एक ऐसा समय है, you know that you're going away, और आप जानते हो कि आप दूर जा रहे हो, just imagine, आप कल्पना करें, it's your time to move on. ये आपका समय है कि आप आगे बढ़े। If you set your heart on these things, क्या आप आपका हृदय, आपका दिल ये ऐसे चीजों के ऊपर लगाएंगे? अपना दिल कहाँ लगाना है? परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के ऊपर। बाइबल कहता है कि स्वर्गीय धन के ऊपर अपने मन को लगाओ। यहाँ का धन क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, बट उस धन पर अपने मन को लगाओ। और अगर आपको अपने हृदय में you know that it's a journey, आप आपके हृदय के अंदर जानते हो कि ये एक सफर है, and destiny is heaven. और आपकी मंजिल स्वर्ग है। Destiny is to be with Jesus forever. और आपकी मंजिल है कि आप यीशु के साथ में हमेशा रहे। What will happen then? फिर क्या होगा? The 6th verse says, और फिर 6ठी आयत कहती है, as they pass through the valley of Baca, they make it a spring. वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान
बनते थे, फिर बरसात की अगली वृक्ष, उसमें आशीष ही आशीष उपजती है। A valley of Baca will become spring. और जो रोने की जो वहां पर तराई है, वो वहां पर उधर से आशीष उमड़ पड़ेगी। Amen. आमेन। क्या जब रोने की एक वैली से, एक तराई से गुजर रहे हैं? वैली इज समथिंग विच इज डीप। तराई बहुत ही गहरी होती है। और आप अगर रो रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आप उस तराई में हैं, बाइबल कहता है कि यदि परमेश्वर आपकी ताकत है तो वो तराई जो रोने की है, जो विलाप की है, वो बहुत ही जल्द आशीषों की तराई बदल जाएगी। वो बहुत ही जल्द इट विल बी फिल्ड विद रेन, और वहां पर बरसात होगी, पवित्र आत्मा की बरसात, पवित्र आत्मा के अभिषेक की बरसात, प्रभु के आनंद की बरसात, यीशु मसीह के उस आनंद की बरसात जो कोई भी परिस्थिति वो आनंद आपसे छीन नहीं सकती। The joy of the Lord is your strength. ये परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत है। Psalms 126:2 says, भजन संहिता 126:2 कहता है, our mouth is filled with laughter हमारे मुंह को तू मुस्कान से, हंसने से भरता है, and our tongue with singing. और हमारे जबान को गीतों से। So don't stop me from singing, तो इसलिए आप मुझे वहां पर गीत गाने से न रोके, because it's the Lord who has filled my mouth with laughter. क्योंकि ये परमेश्वर है जिसने मेरे मुंह को गीतों से और मुस्कान से भरा क्या है। आप मेरे पीछे कह सकते हैं हिंदी में? तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। In English it says, मेरे मुख को प्रभु ने हंसी से भरा है और मेरे जुबान को गीतों से। क्या आप मेरे पीछे कहेंगे जो यहाँ बैठे हैं एटलीस्ट? मेरे मुख को प्रभु ने किससे भरा है? हंसने से। हंसने से, laughter, and my tongue with singing. When you sing, जब भी आप गाते हो, the devil has taken this secret. और शैतान है, उसने ये राज की बात को ले लिया है। And what does he do? और वो क्या करता है? हर एक आप देखेंगे फिल्मी जो गीत है, you have for every situation you have a song. और हर एक परिस्थिति के लिए एक गीत होता है फिल्मी। हार्ट ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया, you have a song for that. You have a love song, you have this song, you have that song, because the devil knows singing is something that can catch the youth. और वहां पर हर एक अवसर के लिए एक एक गीत होता है। अगर दिल टूट गया, अगर आप नाराज हो, अगर आप खुश हो, अगर प्यार हुआ है, कोई भी अवसर क्यों ना हो, हर एक चीज के लिए वहां पर एक गीत होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो सारे युवा है, ये गीतों के अंदर उनका मन लग जाएगा। Just now if you start with a song, you start catching the beat. और जैसे ही हम वहां पर कोई भी गीत गाते हैं तो उसके ताल के ऊपर हम थिरकते हैं। The devil was Lucifer and he was in charge of the worship in heaven. और शैतान जो इब्लिस था, वो सारे स्वर्ग के अंदर स्तुति और आराधना का वो नेता था। Devil knows how important is singing. और शैतान जानता है कि गीत गाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। Singing unto the Lord is a very, very important thing. परमेश्वर के लिए गीत गाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। It's a weapon that you have और ये एक हथियार है आपका against the spirit of heaviness. और सारे बोझ के खिलाफ। What does the book of Isaiah says? He's put the garment of praise. और यशायाह की किताब क्या कहती है? उसने वहां पर स्तुति के वस्त्र पहनाए हैं। Are you wearing the garment of praise? Or are you wearing the spirit of heaviness? एक तो आपके अंदर है. Either one is in you, because something will stay in you, whether it is the spirit of praise or whether it is heaviness, that glue. And now in this atmosphere जो हम देखते हैं, उदासी, sadness, gloominess is all over. But let me tell you, keep yourself into the attitude of praise and worship. और आपके अंदर ये स्तुति है या फिर आपने जो बोझ, जो भारीपन के वस्त्र धारण किए, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। एक तो आपके ऊपर स्तुति का
वस्त्र को पहने। Can we have a song here about praising Him? क्या अभी हम एक गीत गा सकते हैं उसकी स्तुति के लिए? You don't know that. Make a joyful noise unto the Lord, for He is worthy to be praised. No one knows this song. Make a joyful noise unto the Lord, for He is worthy to be praised. और हम परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर में गीत गाएं क्योंकि वो योग्य है स्तुति के। आनंदे वाजवताळी चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवताळी चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी। हेमा ने बोला सुर और ताल नहीं, पर एक बात जरूर है, जब आप हृदय से इस गीत को गाएंगे परमेश्वर के आनंद से भर जाएंगे। आनंदे वाजवताळी चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी। Amen. Amen. The book of Psalms 144 says, भजन संहिता 144 कहता है, Blessed be the Lord my rock. परमेश्वर जो मेरी चट्टान है वो धन्य हो। He trains my hands for war वो मेरे हाथों को लड़ने के लिए तैयार करता है and my fingers for battle. और मेरे उंगलियों को वो युद्ध के लिए तैयार करता है। My Jesus is my high tower, मेरा यीशु मेरा ऊंचा स्थान है high fortress, और वो मेरा ढाल है, मेरा शरण स्थान my है, deliverer, वो मेरा छुड़ाने वाला है, the one in whom I take refuge. जिसके अंदर मैं शरण लेता हूँ। आप जिसके अंदर शरण ले रहे हैं वो यीशु नामक चट्टान है। ऐसी चट्टान जो कोई आंधी नहीं हिला सकती, ऐसी चट्टान जिसके खिलाफ कोई तूफान नहीं उठ सकता। क्या आज आप यीशु नामक चट्टान में सुरक्षित हैं? Yes. क्या यीशु आपका शरण स्थान है? Yes. Is he your high tower? क्या वो आपका ऊंचा स्थान है? प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। He is your refuge. वो आपके छुपने की स्थान है। सेनाओं का यहोवा हमारे हमारे संग संग है।
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. These songs are just not normal songs. और ये जो सारे गीत हैं वो साधारण गीत नहीं. These songs will bring upon you a supernatural protection. और ये जो सारे गीत है आपके ऊपर एक अलौकिक सुरक्षा ले आएंगे. Remember, आप याद रखें, यीशु का नाम आपकी चट्टान है. यीशु आपका ऊंचा गढ़ है. बाइबल सेज, जब मैं डगमगाऊं प्रभु तो तू मेरे पैरों को स्थिर करता है. आज हमारे अंदर वो क्षमता नहीं कि हम अपने आप को स्थिर रख सकें, पर यीशु हमें हर सिचुएशन में स्थिर रखते हैं. मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है. आमीन. आप उसके आगे पढ़ सकते हैं 9th वर्स में, I will sing a new song unto God. मैं परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाऊंगा. अभी पहले उन्होंने कहा फ्लूट, हार्प और वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स. फिर से वो कहते हैं on the harp of 10 strings. 10 तारों के वाद्य के ऊपर I will sing praises to you, Jesus. यीशु मैं तेरी स्तुति और आराधना करूंगा. एक बहुत ही, ये सारे वचन में मुझे सबसे जो बहुत टच ये वर्स हुआ है, भजन संहिता 144, भजन संहिता 144 15वीं आयत. Happy are the people, ध्यान से सुनना. Happy are the people whose God is the Lord. तो इस देश में जो राज्य है वो यह है कि धन्य हो जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है, वो क्या ही धन्य है. क्या ही धन्य है आप, क्योंकि आपने अपना विश्वास यीशु मसीह में रखा है. क्या ही धन्य है वे जिनका खुदा कौन है, यीशु है. There's a song, there's a Punjabi song, but I won't sing it because I'm not. It says, मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु है. Are you blessed? Yes. Because you have Jesus Christ in your life. गिरते हुए को उठाने वाला परमेश्वर, बीमारियों को चंगा करने वाला यीशु. And the God who paid for your salvation. I am blessed because Jesus is my God. जिस परमेश्वर ने वो कीमत अदा की आपके उद्धार की, मैं धन्य हूँ क्योंकि यहोवा मेरा परमेश्वर है. Are you happy? क्या आप खुश हो? Are you happy? क्या आप खुश हो? हाँ, ये तो पता है यीशु मसीह हमारे प्रभु है. Don't take it so lightly. इतना सहजता से ना ले. Remember, अब याद रखें, your God आपके परमेश्वर is an awesome God. वो अद्भुत ऐसा परमेश्वर The है. Lion of Judah, वो यहूदा का सिंह है जो दानियल के साथ उस शेर की गुफा में था, जो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के साथ उस आग की भट्टी में जो चौथा मनुष्य था, जो पौल और सैलास के साथ जेल में उस मध्य रात्रि के समय था, वो यीशु आपके साथ है. वो यीशु जिसने मूसा को जल्दी झाड़ी में दर्शन दिया, वही यहोवा आपके साथ है. I am blessed, for I have you as my God. मैं धन्य हूँ क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हो. And I want to say, Jesus Christ is my Lord. इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है. Psalms 147, 11th verse. भजन संहिता 147. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति करो. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति करो. जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? Praise the Lord. तो इसकी मीनिंग क्या? Praise the Lord. It should not become a custom, a ritual. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. जब भी हम एक दूसरे को देखें तो हम कहें, एक दूसरे को देखकर प्रभु की स्तुति हो. For it says, it is good to sing praises to our God.
क्योंकि ये भला है कि हम हमारे परमेश्वर की स्तुति करें। It is pleasant and beautiful. ये मन भावना है और बहुत ही भला है। It is beautiful. ये खूबसूरत है। It is pleasant. और ये मन भावक है Praise the Lord. कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें। Now, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रभु यीशु मसीह किस बात से खुश होते हैं? We all become happy. We take pleasure in certain things. But Psalms 147:10 says, He does not delight in the strength of the horse. और वो घोड़ों का बल नहीं चाहता। प्रभु घोड़ों का बल नहीं चाहता। आगे क्या लिखा है? न पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है। उनकी ताकत से प्रभु खुश नहीं है, पर किससे खुश है? यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। देखिए, दो बातें प्रभु को खुश करती हैं। आप प्रभु के हृदय को खुश करना चाहते हैं? एक, जो परमेश्वर के डर रखते हैं, और दूसरा, जो उसकी दया की उम्मीद में है। क्या आज आप प्रभु की दया की उम्मीद में हैं? He takes pleasure in those who fear him and those who hope in his mercy. यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, और अर्थात उनसे जो उसकी करुणा के आशा में लगे रहते हैं। Do you have this desire, the Lord, be merciful unto me? क्या आपकी ये उम्मीद, ये आपकी आशा है कि परमेश्वर तो मुझ पर दया कर? God is happy with that. परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। And remember, और आप याद रखें, cry of mercy will never be unheard. और जब भी आप दया की गुहार लगाते हो तो परमेश्वर कभी भी इसे अनसुना नहीं करेगा। प्रभु कभी भी दया की इस पुकार को अनसुना नहीं करेंगे। When you say, Lord, be merciful to me, I am a sinner. जब भी आप कहते हो कि परमेश्वर तू मुझ पर दया कर, मैं एक पापी हूँ। At any stage of your life, आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र के अंदर when you call for mercy, जब भी आप परमेश्वर से दया की गुहार the लगाते हो, Lord takes pleasure in that. परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। If you read Psalms 149:1 says, sing to the Lord a new song. और भजन संहिता 49:1 अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। Let Israel rejoice in their Maker. और हमारे निर्माण कर्ता से हम आनंदित हो। आप आनंदित हैं आपके निर्माण कर्ता से? यस, These are all very important things. ये सारे जरूरी बातें हैं। Let the children of Zion be sorrowful. और सियोन के जो सारे बच्चे हैं वो उदास बैठे हैं। क्या लिखा है आपके बाइबल में? आपके पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? Psalms 149:2. और भजन संहिता 49:2 के अंदर, Let the children of Zion be sorrowful. सियोन के सारे बच्चे बहुत ही उदास हो जाओ। No. नहीं, Be joyful in your King. और सियोन की निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। मगन हो। So remember, praise and worship is not 4-5 गाने लिए और फिर हमने उसे गा लिया। No, it has the essence of pleasing your Savior. Praise and worship is beautiful. Praise and worship is pleasant. Praise and worship is powerful. Praise and worship is very, very important. और ऐसा नहीं है कि हमने 4-5 गाने उठाए और उसको गा लिया, ये स्तुति और आराधना नहीं है। स्तुति आराधना बहुत ही खूबसूरत है। स्तुति आराधना बहुत ही भली है। स्तुति आराधना बहुत ही मन भावनी है। स्तुति आराधना बहुत ही सामर्थ्यशाली है। अपने राजा को प्रसन्न करना। हमारे राजा जो है वो यीशु मसीह है। उसे हम जब गीत गाते हैं, वो आपकी सुर को नहीं देखते। Yes, I know there are technical things we need to look at, but Jesus doesn't see these things. Nowhere is it written, praise Him in a proper high note, in a low note, or in this note, or in that note.
When you have a personal relationship with Jesus, singing becomes a habit. Singing, praising becomes a lifestyle. और परमेश्वर के वचन के अंदर कहां पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप सुर में गाएं, आप ताल में गाएं, आप लय में गाएं। हाँ, वहां पर बहुत सारे टेक्निकल चीजें होती है, पर जब भी आप गीत गाते हो तो आप उसकी आराधना करें। Like David, दाऊद के समान, दाऊद के जैसे नाच के गा के यहोवा की स्तुति करेंगे। You know, when you have this praise and worship, I'm telling you very important thing. जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, आप अपने पूरे माहौल में एक बदलाव लाते हैं। आप पूरे माहौल में बदलाव लाते हैं कैसे? I'll give you a simple example. The Bible says, can we get a chair here? Okay. It won't come in the camera, right? It will. It will. It's like Just I'll so that it goes in the minds of people. Bodi. This one is small. When we praise God, जब भी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं we are actually, और हम वास्तव में, अभी camera and all these things are there, so it is like Bible says हम परमेश्वर के लिए एक कुर्सी बना रहे हैं। Bible says God inhabits in the praises of His people, यानी कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में क्या करते हैं? निवास करते हैं। निवास मतलब रहना, राइट? आपका ऑफिस आपके रहने का स्थान नहीं है, आपका घर आपके रहने का स्थान है। जब आप स्तुति प्रशंसा करते हैं कंटिन्यूसली, तो आप परमेश्वर के लिए एक ऐसा स्थान क्रिएट कर रहे हैं जहाँ प्रभु आपको आपके घर के अंदर आपके साथ विराजमान है। वो सिंहासन वाला परमेश्वर, स्वर्गीय ऐश्वर्यों से, स्प्लेंडर और मैजेस्टी से भरा हुआ यहोवा आपके घर में, आपके साथ, आपकी रसोई में होता है। जब आप अपने रसोई में गीत गाते हैं, जब आप अपने किचन में गीत गाते हैं, इट्स लाइक यू ब्रिंग अ चेयर। Are you happy? क्या आप खुश हैं? There are no pros and cons. और वहाँ पर कोई भी फायदा या नुकसान ऐसी बातें नहीं है। There is nothing like you need an appointment. और ऐसा नहीं है कि आपको मिलने का पहले से एक समय निर्धारित करना पड़ता है। How good our God is. हमारा परमेश्वर कितना भला है। Sing unto Him उसके लिए गीत a गाओ, new song. एक नया गीत, Praise Him उसकी आराधना करो। with these instruments that God has given you. ये 10 तार के वाद्य जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, ये तालियों का जो आवाज है, उस आवाज से यहोवा की स्तुति करें। दाऊद इतना महान राजा था, उसे क्या जरूरत थी स्ट्रीट पे डांस करके प्रभु की स्तुति करने की? जब उसकी वाइफ कहती कि अपने स्टेटस को देखो, तुम राजा हो, पर उस राजाओं के राजा के सामने क्या आप अपने मुकुट को नीचे रखने के लिए तैयार हैं? Are you ready to just surrender and just be a person जो अपने राजा को खुश करना चाहता है? क्या आप ऐसा व्यक्ति बनेंगे कि आपके मुकुट को, आपके सारे ओहदे को बाजू में रख के आप परमेश्वर को आराधना और स्तुति देंगे? जब आप उसकी उपस्थिति में आए तो आप मैनेजर, सीईओ, कोई भी पोस्ट पे क्यों ना हो, अपने सारे पोस्ट को उसके चरणों में रखें और आइए उसके लिए नाचें, उसके लिए गाएं, अपने घर को उसका सिंहासन बनाएं, अपने घर को उसका निवास स्थान बनाएं, अपने घर को जहां पर हम हैं वहां पर यीशु मसीह को सुगंधित अरोमा, सुगंधित धूप, मेरी स्तुति को, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। what a life it is if your life is, no, when Jesus looks at you, जब आप स्तुति करते हो ना तो प्रभु को एक सुगंध आती है। आप में से कितने को परफ्यूम पसंद है?
कितनों को बदबू पसंद है? Nobody, right? But in the same way, when you sing praises, it's like that sweet smelling aroma that arises at the feet of Jesus. जब भी आप गीत गाते हो तो परमेश्वर के लिए ये इत्र के समान, सुगंधित धूप के समान होता है। क्या आप उस स्त्री के समान जो बाइबल में लिखा है, जिसने वो बड़ा एलेबेस्टर बॉक्स लिया, जो इत्र का बाइबल कहता है कि it was very costly, उसने अपने पूरे जीवन भर की जो कमाई थी, and she had bought that perfume, और उन्होंने क्या किया? उस परफ्यूम को परमेश्वर के चरण, यीशु मसीह के चरणों में उंडेल दिया और उस चरणों को अपने बालों से उन्होंने पोंछ दिया। What a wonderful thing! कितनी अद्भुत ऐसी बात है। क्या आज आप यीशु मसीह के महक को अपने अंदर लेना चाहते हैं? Are you want to be that person who carries that aroma, that fragrance of the presence of Jesus? जहाँ आप जाएं, आप इस सुगंध को ले जाएं, क्योंकि you're filled with praising. It's like you don't want to stop praising Him. क्योंकि आप स्तुति से भरे हुए हैं, आप चाहते नहीं हो कि आप रुके। जिसने स्तुति और आराधना का, I'm telling you, if you've really tasted it, no, real praise and worship, जिसने चखा है, वो कभी रुकेगा नहीं। You want to just get more and more and more, and as we have that song, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए more, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत पे आ, अपने कुदरत पे आ, अपने जोर और जहाँ जलाल में आ, तेरी रूह का मसा हमें और चाहिए। आपको चाहिए तो गाइए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत से आ, अपनी कुदरत से आ, अपनी जोर और जहाँ जलाल में आ, तेरी रूह का बसा हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए रूह का माहौल हमें, और चाहिए रूह की माहौल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए रूह की माहौल हमें, और चाहिए रूह का माहौल हमें, और चाहिए। I want to end this sermon with one word, और मैं केवल एक ही वचन के साथ में जो आज का संदेश है उसे खत्म करना चाहती हूँ। और चाहिए। यीशु मसीह की उपस्थिति हमें और चाहिए। रूह का माहौल हमें और चाहिए। प्रभु का जलाल हमें और चाहिए। जब हम नेक्स्ट टाइम मिले, उस टाइम के लिए इन दो शब्दों को याद रखें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। What we need is more of His presence, उसकी उपस्थिति और ज्यादा, more of His glory. उसकी महिमा और ज्यादा। I know I don't want to stop, मैं रुकना नहीं चाहती, but we have a time constraint. पर हमारे पास में एक समय निर्धारित आप है। अपने घरों में you can continue with the same worship and with the same praise. Amen. I would like to our pastor to just do the last prayer,
हमारे पासबान को मैं बुलाती हूँ कि वो आखिरी की प्रार्थना करें। So much viewers, I hope this was a time of great blessing. I hope you have enjoyed the worship, the praise and the word of God. God bless you all. May the Lord grace, peace, mercy be always be with you. Bye for now and hope to see you in person very soon. God bless you all. Thank you so much.